Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Pisces Ascendant and how the month of November 22 is going to turn out for the Pisces Ascendant people. We will first start with the Ascendant Lord. Ascendant Lord Jupiter is passing through the Ascendant itself, and as I have said earlier also, this is an excellent position for the Pisces Ascendant people. Pisces ascendant people mostly are peace lovers, they are spiritual people, and you will see a lot of seers born in this ascendant because Pisces is the sign of spirituality. Pisces represents the last phase of human life. Pisces also represents feet, which if you start from the top represents the last part of your body. So these people can make a lot of progress on the spiritual front, especially if Jupiter is well placed. So that probability of making a spiritual progress will be very high till April 23 because ascendant lord is in the ascendant, and this is always an excellent position irrespective of any ascendant that you belong to. Now Jupiter is also going to aspect the seventh house, and it is going to provide you an opportunity to start your own venture or business, and it is also going to protect your progeny. Jupiter is also going to aspect the fifth house, and people that are involved in education, artistic work, and speculation, they will see a good time in November. Now, there is a very interesting combination that is getting created in the month of November. This is the stylum of three planets, Venus, Mercury, and Sun. So, these three planets are going to combine in your 8th house till 11th of November, and from 17th of November, these three planets are going to get combined in your ninth house. Mars is retrograde and it is going to move to the sign of Taurus in the third house from 13th of November. So an exchange of Mars and Venus is happening. We will call it exchange of signs. So in this case, Mars is going to sit in the sign of Venus and Venus is going to sit in the sign of Mars. There are going to be three planets in the ninth house. Mars is going to aspect this ninth house. Jupiter is going to aspect this ninth house through its ninth aspect. So this house, the ninth house of luck, travel and higher learning, is becoming extremely strong in the month of November. This sign exchange is further going to provide a very strong desire for spiritual development, but you will get frustrated because Mars influence would mean that you want to make things happen as quickly as possible, but that will not happen because these things they take time. You will get the courage to follow your principles and take up the righteous causes. You will also try very hard to convince others about your beliefs and may get into trouble with the law through inflammatory writings or actions. So just be very cautious and do not get into any such kind of a mess. You may think of relocating in order to pursue a higher education in the fine arts or the physical sciences. The traveling opportunities will also come your way, but since this is an exchange where third house is involved, you will have to put a lot of effort to generate your luck. People who are in the literally arts, writers, teaching business, media professionals, columnists, editors, even lawyers as well as pilots, they will see a good time during this month. Sun and Mercury are going to be a part of cluster along with Venus in the ninth house, and it is also getting aspected by Jupiter, as I said earlier. So, people in both the service as well as business will see a good time because the Lord of business is Mercury, Lord of service is Sun for the Pisces ascendant people, and both of them are sitting together in the ninth house. So the house of luck is getting activated for both the business people as well as service people. Now there are also certain dates when people need to be very cautious, and these are the dates. Moon passes through the 6th, 8th, and the 12th house. So for Pisces ascendant people, these dates are 2nd, 3rd, and 4th November, 17th, 18th, and 21st, 22nd, and 23rd November, and 30th of November. So these are the dates when Pisces ascendant people need to be cautious and they need to avoid taking any decision that may have long-term consequences. If you look overall, this combination of three planets in the ninth house is a very auspicious combination, especially if you are going to undertake activities that are related to the ninth house. So if you pursue higher education or plan a religious activity, involve yourself in the religion in the public sphere, or plan a travel which is again religious in nature. So evoking the significations of the ninth house in November will be very helpful for you to make this month worth remembering. In a nutshell, the key is to utilize your luck through the route of effort and courage. That is where your planets are taking you in November, and this is the summary for you for this month. So if you have liked my video, I would
request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं कि मीन लग्न वालों के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लग्न स्थान की बात करते हैं तो लग्न स्थान में ही गुरु बैठे हुए हैं और ये मीन लग्न के स्वामी स्वयं गुरुदेव होते हैं। तो लग्न स्थान के स्वामी का लग्न में ही बैठना ये किसी भी लग्न के लिए बहुत अच्छी स्थिति कहलाती है। यहाँ पे मीन लग्न के लोगों को वैसे भी शांति प्रिय होते हैं लोग, धर्म के प्रति बड़ी आस्था रहती है इनकी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका बड़ा आकर्षण रहता है। तो यहाँ पे गुरु बैठकर लग्न स्थान में ही इन सब चीज़ों को बढ़ावा देगा और इस तरह के लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत तरक्की करते हैं। अगर खास करके लग्न चार्ट में भी ऐसी स्थिति है आपकी बर्थ चार्ट में, तो भी गुरु यहाँ का बैठा हुआ व्यक्ति को स्पिरिचुअल लेवल्स पे बहुत ऊपर लेके जाता है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। गुरु यहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो ये जितने भी लोगों को अपना स्वयं का धंधा चालू करना है, व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये हरी झंडी देता है गुरु यहाँ से जाता हुआ। और पंचम दृष्टि से वो आपके संतति के स्थान को देखता है, तो आपकी संतति को भी प्रोटेक्ट करता है। तो जितने भी लोग अगर पंचम भाव से जुड़ा हुआ काम में हैं, एजुकेशन में हैं, आर्टिस्टिक काम करते हैं, इंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या सट्टेबाजी में, स्पेकुलेशन में, तो भी नवंबर में अच्छा महीना निकलेगा उनके लिए। गुरु यहाँ पे बैठ के उनको हानि नहीं होने देगा। अभी तीन प्लैनेट्स यहाँ पे नवम भाव में कंबाइन हो रहे हैं, बुध, सूर्य और शुक्र। पहले ये तीन ग्रह 11 नवंबर तक अष्टम भाव में बैठे रहेंगे, उसके बाद बुध और शुक्र आगे चले जाएंगे नवम भाव में और इनको सूर्य ज्वाइन कर लेंगे 17 नवंबर को। जो तो जब तीन ग्रहों का जमावड़ा होता है यहाँ पर नवे भाव में और इस पर दृष्टि पड़ रही है मंगल की 7वीं और गुरु की 9वीं, तो पांच पांच प्लैनेट्स का इम्पैक्ट नवे भाव पे आता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि नवा भाव एकदम से बहुत बलवान हो जाता है। तो नवे भाव से जितनी भी चीजें दिखाई जाती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो गया, धर्म हो गया, आपके पिताजी हो गया, आपका भाग्य हो गया, इन सब चीजों को बहुत बढ़ावा मिलेगा, बल मिलेगा। तो आप अगर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं या ऐसी यात्रा करते हैं जो कि रिलीजियस नेचर की हैं, तो ये सब चीजों से आप नवे भाव को, अपने भाग्य स्थान को और बलवान करेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत है कि तीसरा भाव भी इन्वॉल्व है, तो कोई भी चीज बिना एफर्ट के नहीं होगी इसमें। जो पूरी एक्सिस है जिसपे फोकस है वो है तीसरी और नवी एक्सिस। और यहाँ पे शुक्र और मंगल राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, मंगल शुक्र की राशि में और शुक्र मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक भाव में बैठे होने की वजह से आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो तृतीय भाव से आपका एफर्ट और करेज देखा जाता है, नवे भाव से आपका भाग्य देखा जाता है। तो जितना आप एफर्ट करेंगे उतना ही आपका भाग्य भी मजबूत होता जाएगा, बलवान होता जाएगा। तो आपको इस महीने में आप लकी भी साबित होंगे, आपका ट्रैवल भी होगा और अगर आप कोई हायर एजुकेशन परसू कर रहे हैं, पीएचडी या मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एरिया ऐसा है जिसमें आपको सफलता मिलेगी। इस तरह की कॉम्बिनेशन में व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल पाथ पे है तो वो चाहता है जल्दी जल्दी ऊपर चढ़े डायमेंशंस में स्पिरिचुअलिटी की, लेकिन मंगल भी उसको देख रहा है और उसकी वजह से और जल्दी मचती है व्यक्ति को। लेकिन यहाँ पे समय लगेगा चीज़ों को सही तरीके से सॉर्ट आउट होने में, स्पेशली अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो। और आपको ये इस तरह का प्लेसमेंट मंगल तृतीय भाव में और ये तीन प्लैनेट्स यहाँ जो बैठे हैं, ये आपको एक राइट कॉज के लिए, जिसको हम कहते हैं सही मुद्दे के लिए झंडा उठाना, उसकी ये आपको हिम्मत देगा। ये इस तरह का प्लेसमेंट आप बहुत ज्यादा प्रयत्न करेंगे दूसरे लोगों को आप जिसको बिलीव करते हैं वो लाइन ऑफ थॉट, वो थिंकिंग समझाने के लिए। और उसके चक्कर में अगर आप ज़्यादा कर जाते हैं तो आप कानून के उसमें भी आ सकते हैं, पचड़े में जिसे हम कहते हैं। क्योंकि आप जो राइटिंग लिखेंगे वो उकसाने वाली हो सकती है। मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल लिख दिया कोई धर्म के प्रति, उससे बाकी लोग जिनकी उस धर्म के प्रति आस्था नहीं है वो भड़क जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो वो उसमें ध्यान रखिएगा कि लिखने विखने के काम में थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करके रखिए, नहीं तो फिर ये मुद्दा आगे तक जाएगा और आपको फालतू की तकलीफ होगी। तो उस चीज़ों में थोड़ा सा दूसरे डायमेंशन में जाने में बचिए इस महीने में। आप ये भी सोच सकते हैं कि आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं और बाहर जगह पे रिलोकेट होना चाहते हैं, तो इस तरह का ख्याल अगर आपके पास चल रहा है तो ये भी अच्छा मौका है वो बाहर जाने का। आप हायर एजुकेशन परसू कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स में कह लीजिए या फिजिकल साइंसेज में इस महीने में। और आपके पास जब भी ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि उसी से आपका लक भी मजबूत होगा। यहाँ पे जितने भी लोग लिटरली आर्ट्स से संबंध रखते हैं या राइटर हैं, वो टीचर हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स हैं,
जो टीवी चैनल्स और ये सब में हम देखते हैं, वो कॉलमिस्ट हैं अखबारों में, जिनके कॉलम आते हैं, एडिटर्स हैं न्यूज़पेपर्स के, इवन जो वकील हैं या पायलट हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो ये सारे प्रोफेशन में जितने लोग हैं, मीन लगने वाले, ये सब तरक्की करेंगे इस महीने में, बहुत अच्छा समय निकलेगा इनके लिए। देखिए, सूर्य और बुध, सूर्य सर्विस के स्वामी बनते हैं और बुध व्यापार के स्वामी बनते हैं। ये दोनों भी एक साथ बैठे हुए नवे भाव में, तो छठवें भाव का स्वामी नवे में, सातवें भाव का स्वामी नवे में, यानी आपको लक सपोर्ट करेगा आपके सर्विस में या फिर बिजनेस में। और यहाँ पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, नवी दृष्टि। तो इसीलिए जितने भी लोग कार्यस्थल के लोग हैं, छठवें सातवें भाव में, बिजनेस है या सर्विस है, और जो एरियाज मैंने आपको बताए हैं, उनमें काफ़ी इनको तरक्की देखने को मिलेगी इस महीने में। अभी कुछ दिनों में ऐसे आपको सावधानी बरतने के लिए दिन होते हैं हर महीने में, क्योंकि चंद्र आपके 6 8 12 से निकलता है। तो मीन लग्न वालों के लिए वो दिन है 2 3 और 4 नवंबर, 17 और 18 नवंबर, 21 22 और 23 नवंबर और 30 नवंबर। इन दिनों में आप सावधान रहिए, क्योंकि चंद्र इन दिनों में आपके 6 8 12 घर से निकलेगा, तो आपका डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि लग्न स्थान का स्वामी लग्न में बैठा है, और जैसा मैंने बताया कि ये जो 3 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो अगर आप जिन एरियाज की मैंने बात की थी उनमें अगर आपका बिजनेस है या सर्विस है, तो उसमें आपका लक आपका साथ देगा और आपका महीना बहुत अच्छा निकलेगा, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये महीने में आपको अपने लक का इस्तेमाल कर लेना है, और उसका तरीका क्या है, प्रयास के थ्रू और थोड़ी सी हिम्मत दिखा के। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।